السلام علیکم سامعین اور ناظرین، انفو ود انم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ مزید ناول سننے کے لیے، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اور بہت ساری دوسری معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ کوئی بھی ویڈیو ہماری سب سے پہلے حاصل کر سکیں۔ محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 6، حصہ نمبر 2۔ صبا کے لیے نوفل کا انداز بہت شوکنگ تھا۔ وہ کیا کروں اور کیا نہ کروں والی سچویشن کا شکار تھی۔ کیا یہ سب اس کی سازش میں شریک ہے؟ اس نے صالحہ بیگم کا چہرہ کریدنے کی کوشش کی، مگر شفقت اور محسوس کن محبت کی چھاپ پا کر وہ کچھ جاننے سمجھنے میں ناکام ہو گئی۔ اس کا دل اس قدر گھبرا رہا تھا کہ وہ سوچے سمجھے بنا آ کر ان سب میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کمرہ جسے وہ ڈریم لینڈ ہی سمجھتی تھی، اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے خوابوں کا جزیرہ نہیں تھا۔ وہاں کسی اور کے خواب پلتے تھے، کسی اور کی یادیں بستی تھی، وہاں کی ہر شے میں کسی اور کی محبت کا ڈیرا تھا۔ حتیٰ کہ نوفل احمد بھی۔ وہ سب صبا کے ساتھ بہت محبت اور احترام سے بات کر رہے تھے، اپنائیت کا احساس دلاتے تھے، مگر اسے سب کی باتیں، سب کی نگاہیں اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنے چہرے پہ حتی الامکان بشاشت طاری کرنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی اس کی بربادی نہ جانچ پائے، اس کے دکھ کی پڑتال نہ کر لے، اور پھر وہ سامنے آ بیٹھا تھا جس نے چند لمحوں میں اس کی گزشتہ زندگی کا سارا مان چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کا سامنا کس قدر ذلت آمیز تھا یہ صبا کو ہی معلوم تھا۔ بے حد پر اعتماد اور پرسکون انداز میں سب کے ساتھ ہنستا، باتیں کرتا یہ شخص کس قدر ذہانیت رکھتا تھا یہ تو کوئی صبا سے پوچھتا۔ بھابھی تو کچھ بات ہی نہیں کر رہی۔ کیا یہ نوفل کا آرڈر ہے؟ آزر نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ اب پہلے دن کی دلہن تم لوگوں کی مسخریوں کا کیا مقابلہ کرے؟ اسے تنگ مت کرو۔ خالہ جان نے اپنے بیٹے کو سرزنش کی تھی۔ انہیں تنگ کرنے کا پرمٹ صرف نوفل کے پاس ہے، اسد نے اطمینان سے کہا تو ایک قہقہہ لگا تھا۔ وہ بامشکل آنسو پیتی سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ سدرا اور زارا اسے بیوٹی پارلر سے تیار کرا کر لائی تھی۔ اس کی نگاہیں صرف اور صرف اپنے پیاروں کی دید کی منتظر تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس کی ہاتھ کے چھالے کی طرح حفاظت کی تھی۔ اس کے آنسو ہر رکاوٹ کو توڑ ڈالنے کی کوشش میں تھے۔ حلق میں مقید چیخیں کسی کو اپنا درد سنانے کو مچل رہی تھی۔ تھوڑا سا ریسٹ کر لو، یوں ہی تکیے سے ٹیک لگا کر، ابھی فنکشن میں تھوڑی دیر ہے، پھر تو سارا وقت یوں ہی بیٹھنے میں نکل جائے گا، سترا نے بہت محبت سے کہا تھا۔ وہ متشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس وقت یوں بھی دل تنہائی چاہ رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ میں تنہائی میں مخل تو نہیں ہوئی؟ ادینہ مسکراتے ہوئے معذرت خواہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ صبا کو اتنا بھی وقت نہیں ملا تھا کہ اپنے چہرے پہ پھیلے شکست اور دقت کے نشانات مٹا ڈالتی۔ ارے کیا بات ہے صبا، تم رو رہی ہو؟ وہ تیزی سے کہتی آگے بڑھی تھی۔ در حقیقت وہ صبا کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھیرنا چاہتی تھی۔ نہیں، یوں ہی بس اس نے زرد پڑتی رنگت کو مسکراہٹ کے پردے میں چھپانا چاہا تھا۔ ادینہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے گہری سانس بھری اور ہمدردانہ انداز میں بولی، مجھے پہلے ہی سے اندازہ تھا کہ نوفل اس پرپوزل پر زور کیوں دے رہا ہے، تو آپ نے آنٹی سے کیوں نہیں کہا؟ وہ بے اختیار پوچھ گئی تھی۔ گویا ادینہ نے جو اندازہ لگایا تھا اس پر حقیقت کی مہر لگا دی۔ ادینہ کا دل سینے میں دمادے ڈالنے لگا۔ میں کیا اور میری اوقات کیا؟ اس گھر میں رہنے تک کا اختیار تو ہمارے پاس ہے نہیں، جبکہ اتنے بڑے معاملے میں رائے دینا، وہ بڑے دکھی انداز میں کہہ رہی تھی، جبکہ دل تو قہقہے لگانے کو چاہ رہا تھا۔ جذبات کی روح گزر گئی تو صبا کو یکلخت پریشانی نے آ گھیرا۔ یہ مسئلہ ادینہ سے تو بالکل بھی شیئر کرنے والا نہیں تھا۔ یہ کیا کر بیٹھی تھی وہ؟ کیسا بیہیو تھا نوفل کا؟ ادینہ نے اس کی آنکھوں میں اتری سرخی اور ستے ہوئے چہرے کو نظر میں رکھتے ہوئے اسی ہمدردانہ انداز میں پوچھا تھا۔ صبا نے تیزی سے خود کو سنبھالا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، بیہیو تو ٹھیک تھا مگر بہت سرد اور سنجیدہ تھا، میں ایسے رویوں کی عادی نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کر ادینہ کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے بے اختیار صبا پر نگاہ ڈالی تھی۔ تو کیا یہ نوفل کو پا چکی ہے؟ اتنی خوبصورت ہو تم صبا، پھر بھی نوفل؟ ادینہ نے اپنے نئے مہرے کو بہت ہوشیاری سے آگے بڑھانا چاہا تھا، مگر صبا نے آنسو پی کر مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ یہی بات تو انہوں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہی، صرف ایک دوسرے کو پا لینا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، کچھ حسین وعدے، کوئی اعتراف، مچلتے دل کے ٹھہراؤ کے لیے یہ سب بھی تو ضروری ہوتا ہے نا۔ ادینہ نے ہر درجہ بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس قدر پوتا نکلا نوفل، حسن کی مار نہیں سہ پایا؟ اب اتنی جلدی تو وہ پہلی محبت نہیں بھول سکتا نا، مگر مجھے یقین ہے کہ تم اسے حاصل کر ہی لوگی۔ اب کی بار ادینہ نے خلا وار کیا تھا، اور حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک زندگی بن چکے ہیں، اور دل کا کیا ہے؟ 90% عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شوہروں کے دل میں کیا ہے۔ صبا اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ اسے محسوس ہو چکا تھا کہ بات اپنے تک رہے تو ٹھیک، ورنہ کھلے عام شکست تسلیم کرنا بہت ذلت آمیز بات تھی۔ پھر بھی نوفل کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میرے ہو چکے ہیں، اور ابھی تو شروعات ہے۔ دل لگی ہے، اوقات سے تو دل کی لگی بھی بن جاتی ہے۔ اس نے
पलकें झुकाकर दिल पर बहुत जबर करते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा तो अदीना इसके पल पल बदलते रूप पर हैरान हो गई। कोशिश करो देखो सबा, वरना याले अफरीदी का शोला फशा हुसन तो तुम भी देख चुकी हो। वो बदमजा होकर उठी थी। सारी बात किस्मत की होती है, हुसन काम आता तो आज मेरी जगह यहाँ याले होती। वाकई सारी बात किस्मत की होती है और खुशकिस्मती शोहर के दिल में रहने से साबित होती है, फक्त कागज के एक पुर्जे पर इकट्ठे रहने से नहीं। अदीना ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। सबा ने इसके चेहरे को जांचने की, इसके तासुरात को खरीदने की कोशिश कर डाली। इसे एकदम से अदीना पर भरोसा कर लेना भी ठीक नहीं लगा था। यही वजह थी कि वो अपने कहे पर बहुत से झूठ के पर्दे डाल गई थी। ये अलग बात थी कि अदीना को इसके कहे एक भी लफ्ज़ पर एतबार नहीं आ रहा था, फिर भी वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ इससे विश करती चली गई थी। ओ गॉड, सबा ने अपने रूम में थकन को डेरे डालते महसूस किया था। इसने इस कदर खालिश और सादा जिंदगी गुजारी थी कि अब ये बनावट जान का अजाब मालूम हो रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि नई जिंदगी की शुरुआत करते ही कदम कदम पर झूठ का साथ देना पड़ेगा। इसे खुद पर भी हैरत हो रही थी, कितनी बहादुर हो गई थी वो। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद रात ही को अपने घर वालों को फोन करके कोई छोटी मोटी क़यामत मचा चुकी होती। अब क्या करना है मुझे? उसने दुखे दिमाग को सुकून देने की खातिर आंखें बंद करके तकिए पर सर टिका दिया। अनस भाई, क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं इनकी जिंदगी भी बर्बाद कर दूं? अनस का हंसता हुआ पुरसुकून सा चेहरा इसकी आंखों में गुम गया और नगीन का शर्मीला सा रूप किस कदर खूबसूरत और मुकम्मल दिखाई दे रहे थे वो दोनों। और क्या वो अनस की मोहब्बत और नगीन के लिए दीवानगी से वाकिफ ना थी? वो ऐसा ही था, हर किसी के लिए जज्बाती। और नौफल अहमद, मैंने भी ये ना चाहते हुए हर मशरकी लड़की की तरह तुम्हें अपने दिल में एक बहुत ख़ास जगह दे डाली थी, फितरी तौर पर ही सही, मगर बहुत कुछ सोच डाला था। और तुम तो कागजी रिश्ते का मान भी नहीं रख पाए। कमरे में दाखिल होता नौफल बेख्तियार ठटक गया था। पिस्ते कलर की खूबसूरत लहंगे में मलबूस मेकअप और जेवरात से आरास्ता वो मुजस्सम हुसन लग रही थी। आंखें बंद किए वो बेखबर, वो जाने क्या सोच रही थी या शायद सो रही थी। इसकी बंद पलकों के पीछे मौजूद वजूद का ख्याल आते ही नौफल ने लब भींचे थे। इसने अपना मोबाइल और की चैन बिस्तर पर फेंकी तो वो हड़बड़ाकर आंखें खोल गई। शायद लाशऊरी तौर पर नौफल इसके ख्यालात को मुंतशिर ही करना चाहता था। क्या अभी भी इस ढोंग की ज़रूरत बाकी है? बिस्तर पर बैठकर जूते उतारते तंज़ी अंदाज में कहता यकीनन इसके बनाऊ सिगार की तरफ इशारा कर रहा था। शदीद दुख और बेयकीनी का शिकार होने के बावजूद सबा को गुस्से की तेज़ लहर ने अपने लपेट में ले लिया था। जहाँ कदम कदम पर ड्रामों से वास्ता पड़ता हो वहाँ ये ढोंग रचाना ही पड़ता है। इसका तलखी से भरपूर जवाब नौफल को पूरे का पूरा इसकी तरफ मतवज्जा कर गया। चेहरे पर नागवारी और आंखों में खुफकी का तासर लिए वो वाकई गुस्से में लग रही थी। नौफल के दिल में तमानियत भरने लगी। मेरे दिल ने पहले ही निगाह में तुम्हारी तलब की थी। ये हकीकत गोहर आबदार की मानत है जो मैं कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। मुझे धोखे में रखकर तुम नई जिंदगी शुरू करना चाहती हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इसकी निगाह के इर्तिकाज ने सबा को कंफ्यूज कर दिया। इसकी पलकों का लर्ज कर झुकना ही नौफल को चौंकाने का सबब बना था। वेरी गुड, यानी आपको ज्यादा डिक्टेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्लमंद हैं, आगे का लाहे अमल खुद तय कर सकती हैं। वो बहुत पुरसुकून अंदाज में कह रहा था। सबा का दिल भर आया। ये इसका शरीक सफ़र था, ज़िंदगी भर के सफ़र का शरीक। ये कैसा सफ़र शुरू हुआ था कि वो पहले ही गांव पर थकन से चूर हो गई थी? और ये कैसा शरीक सफ़र था? बेमुरव्वत, कच अदा, धोखेबाज। मुझे किसी भी किस्म का लाहे अमल तैयार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं इस कदर मशरूत किस्म की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ओके, एज यू विश। वो भला का पुरसुकून था। अपनी खुशनुमा आंखों को खफीफ से जंबिश देकर इत्मीनान से बोला, आप जो चाहें फैसला कर सकती हैं, मगर यह भी तय है कि अपने हर फैसले का रीज़न भी आप ही पेश करेंगी। मुझे अपने कंधों पर बंदूक रखने का कोई शौक नहीं। सबा दुख और तासुब का शिकार इसे देखकर रह गई। आपको इतनी लंबी गेम खेलने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। हम यूं ही नगीन को बहुत खुश रखते। खवामखा आपने जिंदगियों को दाव पर लगा दिया। वो बुराए हुए लहजे में बोली तो वो अपनी रिस्ट वॉच खोलकर मोबाइल के पास रखता उठ खड़ा हुआ। क्या करें सबा बीवी, बहुत से काम इंसान को ना चाहते हुए भी करना पड़ते हैं। और वार्डरोब खोलकर अपने कपड़े निकालने लगा जो आज की तकरीब में ज़ेब तन करने थे। इसके जवाब ने सबा को अदमवा सा कर दिया। कितने आराम से वो इसे अपनी चाल का शिकार बना गया था और तो और बच निकलने की कोई राह भी ना छोड़ी थी। कितने आराम से इसने जिता दिया था कि इंतहाई फैसला करने की सूरत में घर वालों के सामने जवाबदेही भी वही होगी। यक लगत ही इसे तैश आने लगा। जब वो इसे कोई अहमियत, कोई हक देने को तैयार ही नहीं था तो फिर भी क्यों इसकी बदनीयत पर पर्दा डालती? यह सब आपकी मजबूरी होगा, मेरी नहीं, और ना ही मैं आपकी इस मजबूरी को निभाने की पाबंद हूँ। इसने चटक कर कहा तो वो हैंग किया हुआ डस्ट कलर का
सूट हाथ में थामे पूरा इसकी तरफ घूम गया। क्या कहेंगी सबसे? वही जो आप मुझे रात में कह चुके हैं, इसका जब्त जवाब देने लगा था। क्या कह रही हैं आप? इतने अच्छे तरीके से तो हमने नई जिंदगी शुरू की है। वो हैरान होने की एक्टिंग कर रहा था। सबा शशर्त रह गई। हैंगर पर से कपड़े उतारते हुए वो बहुत इत्मीनान से कह रहा था, मैं सबके सामने भी यही कहूंगा, इसलिए एक बार फिर आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी फैसला करते वक्त इस बात को जरूर मद्देनजर रखिएगा कि इस फैसले का रीजन भी आप ही देंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके बराए हुए लहजे को नजरअंदाज करते हुए वो उसी पुरसकून अंदाज में बोली, चेहरों पे मत जाएं सबा बीबी, इनसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं होता। आम हालात में तो शायद हया के मारे वो इससे कभी दो लफ्ज़ी गुफ्तगू भी ना कर पाती, मगर वो तो इस कदर बेयकीनी और सदमे की गिरफ्त में थी कि हद नहीं। तमाम शर्मो हया, तमाम झिझक और घबराहट कहीं दूर जा सोई थी। सो अपने दुल्हानेपन का ख्याल तक जहन में नहीं था, यहाँ तक कि जिंदगी दाव पर लगने जा रही थी। बाकी किसी एहसास की तरफ ध्यान देने का इसे होश नहीं रहा था। मगर मैं ये मशरूत ज़िंदगी नहीं चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक आपको किस नाते से दूँ? वो बेतलखी से कह रही थी। दुख के मारे बात करना मुश्किल थी, आंखों की जलन हद से सवा थी, मगर सामने खड़ा शख्स भी तो इंतहा का संगदिल था। वो रोती भी तो शायद इसके हंस उठाने ही का सामान होता, और यूं भी सारी रात वक्फे वक्फे से वो यही काम तो करती रही थी। मत भूलें कि अब हमारे दरमियान एक कागजी रिश्ता भी है। वो इसे याद दहानी करा रहा था। सबा का जी चाहा कि वो चीख उठे। कागजी रिश्ता? किसी ने अपने जिगर का टुकड़ा इसके हवाले कर दिया था और वो इस वक्त कागजी कार्रवाई गर्दान रहा था? अगर यही आपके ख्यालात हैं तो मेरी ज़िंदगी हिसाब में डालने से बेहतर है कि आप बाकी सब पर भी अपनी लॉजिक वाजिया कर दें। बट वाई? वो शानों को हल्की सी जंबिश से चकाकर इस्ताजाबिया अंदाज में बोला, मैंने अपनी मर्जी से ये फैसला किया है, बहुत सोच समझ कर अपनी बहन का मुस्तकबिल महफूज किया है। वो मैं क्यों सबको बताता फिरूं? मगर मैं ज़रूर बताऊंगी। वो मुश्तिल हो उठी थी। लहजा पर इसे देखने के बाद वो यूं हंसा जैसे इसने बहुत बेवकूफ़ाना बात कह दी हो। फिर आराम से बोला, ये भी करके देख लें, मगर सबूत भी आप ही को फराहम करना होगा। मैं गवाही नहीं दूंगा अपने लफ्ज़ों की। आप अपने कहे से नहीं मुकर सकते। मैं मुकर जाऊंगा सबा मीर। इसकी आंखों में देखते हुए वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला। वो ठंडी पड़ गई। बहरहाल आप अपने फैसलों में आज़ाद हैं। मेरी तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं है। मुझे इन्फॉर्म किए बगैर भी आप जो चाहें किसी से भी कुछ भी कह सकती हैं। वो कहता हुआ अपने कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में चला गया था। वो सगी मुजस्मे की तरह साकित बैठी थी, बदन में जैसे जान बाकी न रही हो। इसके पर काटकर पिंजरे का दरवाज़ा खोलते हुए कितनी फराग दिली से वो इसे रिहाई का अज़न दे गया था। वो इस कदर शदीद दुख के हसार में थी कि इसे रोना भी नहीं आ रहा था। मोबाइल की बैल ने इस जामिद सकूत को मजरू कर दिया था। सबा ने खाली नजरों से सामने पड़े इसके मोबाइल को देखा, जिसकी रोशन स्क्रीन पर याले अफरीदी का नाम जगमगा रहा था। इसके दिल को एक धक्का सा लगा था। बेख्तियार इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया और ऑफ करके रख दिया। दरवाज़ा खटखटाकर सिदरा अंदर आई थी। हद होती है लापरवाही की। नौफल कमरे में है और दरवाज़ा खुला छोड़ रखा है। एक ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे पर डालते हुए इसने इस शरारत से सरगोशी की थी। वो ढंग से शर्मा भी न सकी। ऐसा रिश्ता ही कहाँ बनता था जो वो नाजुक एहसासात को महसूस कर पाती। इसके सर झुका लेने को सितरा इसकी हया का अंदाज ही समझी थी। तुम क्या पट्टियां पढ़ा रही हो मेरी मिसिस को? वो शर्ट के कफलिंग्स बंद करता बाहर निकला था। जिसका तुम जैसा शोहर हो इसे तो वाकई पट्टियां पढ़ानी ही चाहिए, सिदरा ने कहा। मैं तुम्हारी इस कमेंट पर सख्त एहतजाज करता हूँ। मुझ जैसे से क्या मुराद है तुम्हारी? अपने मखसूस पुरएतमाद मुस्कुराहट के साथ पूछ रहा था। ऐसा शोहर जिसके हर वक्त चोरी हो जाने का डर हो, वो तुम जैसा ही होता है। अच्छे लग रहे हो। सिदरा ने खुले दिल से इसकी तारीफ की थी। इनकी ये खालाजाद इनसे काफ़ी क्लोज थी, इसलिए हंसी मजाक मामूल का हिस्सा था। डोंट टेल मी। वो इसकी बात को एंजॉय करते हुए मोबाइल उठाकर चेक करने लगा। बेल की आवाज़ इसने भी तो सुनी होगी, सबा ने सोचा था। ये कैसे ऑफ हो गया? वो बड़बड़ाते हुए मोबाइल ऑन करके CLI पर मिस होने वाली कॉल चेक करने लगा। इसके मोबाइल पर ज़रूर चेक रखना सबा, सिदरा ने फिर से शरारत की थी। खुदा का खौफ करो सिदरा, अभी तो एक ही रोज़ हुआ है हमारी शादी को। ये तो पता नहीं पहले ही मुझ पर एतबार कर रही हैं या नहीं। तुम जलती पर तेल छिड़क रही हो। वो बात करने के दौरान यकीनन याले को कॉल बैक कर रहा था। हेलो याले, सॉरी यार मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाया। क्या बात है? वो बात करते हुए कमरे से निकल गया। सबा क्या बात है? बहुत सुस्त लग रही हो। सिदरा को इसकी खामोशी और गायब दिमागी पर तशवीश हुई थी। कहीं तुम मेरी बकवास पर परेशान तो नहीं हो रही? डोंट वरी यार, हमारा मजाक बहुत चलता है। नौफल बहुत स्वीट बंदा है, बहुत लविंग एंड केयरिंग। जो एक बार इसके हल्का अहबाब में आ गया समझ लो इसकी मोहब्बत का कैदी बन गया। वो इसे बहुत प्यार से समझा रही थी, दिलासे दे रही थी।
मजबूरन सबा को होंठों पर मुस्कुराहट लानी पड़ी। चलो भाई, मामा का सख्त ऑर्डर है कि अब नीचे आ जाएं। वो बोलता हुआ अंदर आया तो सिद्रा ने सबा का हाथ थामकर इसे खड़ा किया था। मूवी मेकर और कैमरामैन कहाँ हैं? सिद्रा ने पूछा था। वो डाउन स्टेयर्स हैं, अभी नीचे जाते हुए मूवी बनाएंगे, कहते हुए टाई की नोट लगाकर इसने कोट पहना था। तो फिर मैं चलती हूँ, आप जनाब अपनी मिसिस के साथ सीढ़ियों से उतरते हुए फिल्मी सा सीन बनवा कर आए, सिद्रा ने मुस्कुराते हुए कहा था। उसी वक्त आजर के हमरा बाकी सब भी दनाते हुए कमरे में चले आए। चल भी पड़ो यार, बाहर मूवी मेकर सूख रहा है तुम्हारे इंतजार में। असद ने इसे देर होने का एहसास दिलाया था। जल्दी करो, भाभी के घर वाले आ चुके हैं और तुम दोनों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, इसने कहा तो सबा को लगा जैसे रगों में मुंजमद खून पिघलकर पूरे वजूद में दौड़ उठा हो। खुद में एक आई जान पैदा हुई महसूस की थी। इसके प्यारे आ चुके हैं, इसको खुशियों के हंडोलों में झुलाने वाले, गमों की तमाजत से बचाने वाले। ताई जान के सीने से लगकर वो दुनिया के गमों से बेनियाज हो गई। हाँ, अभी बहुत से लोग हैं मुझे चाहने वाले नौफल अहमद, मैं तुम्हें इस घिनौने मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी, इसने बेहद तल्खी से सोचा था। खुदा करे कि तुम हमेशा मेरे भाई के साथ रहो, खुश रहो, इनकी जिंदगी को भी खुशियों से भर दो। नगीन की मोहब्बत की बेसाख्तगी में इसे कहीं भी कोई बनावट दिखाई नहीं दी थी। इसके साथ अनस खड़ा था, फ्रेश और बहुत खुशो करम। सबा की नजर धंधलाने लगी। अनस ने इसकी सभी पेशानी चूम ली थी। इसका हर गम, हर दर्द दिल में घुटने लगा। क्या करूं, बुझा दूं इन आंखों की जोत को, उजाड़ दूं इनकी भी हंसे। इसके सामने मुतमीन और पुरसुकून से अनस और नगीन थे। वो बहुत गायब दिमागी के साथ सबसे मिल रही थी। या अल्लाह, कोई तो रोशन खिले, कहीं से तो राह दिखाने वाला जुगनू हाथ लगे। वो इसके साथ आ बैठा था। मूवी और तस्वीरें बन रही थी और वो बहुत पुरएतमाद और दोस्ताना अंदाज में इसके कसरत के साथ हंसी मजाक कर रहा था। क्या ये हकीकत है? इतना कुछ सह कर भी मेरा जब्त कायम है? इसने सर झुकाकर अपनी उलझी बिखरी सोचों को एक नुक्ते पर मरतकज करना चाहा तो मूवी मेकर की फरमाइश पर किसी ने फिर से इसका चेहरा ऊपर कर दिया। इसकी भड़कती निगाह सामने बैठे लोगों पर जा रुकी। हंसते मुस्कुराते चेहरे, ये हंसी, ये मुस्कुराहट सिर्फ मेरी खुशियों की मरहूने मिन्नत है, और अगर अभी भी मैं इन्हें नोहा सुना दूं तो? इसका दिल थम सा गया। तो अब्बू क्या करेंगे? चचा जान, अम्मी और अनस भाई, मेरा ये बहुत जज्बाती सा भाई जाने क्या कर डालेगा। और नगीन, इस बेचारी का क्या कसूर है जो, मगर मेरा भी क्या कसूर? लेकिन मेरी जिंदगी और इन सबकी जिंदगियाँ, जिंदगी और जिंदगियाँ अभी सिर्फ वो तन्हा इस अलाव में जल रही थी, और अगर इन सबको भी हकीकत की खबर हो जाती तो कुछ जलकर खाक हो जाना था। तो क्या इतनी सारी जिंदगियों को खारजार पर घसीटने से बेहतर नहीं कि मैं सिर्फ अपनी ही जिंदगी? इन्हें कहें कोई बात करें, मुस्कुराएं। इसकी सोचों के तने हुए तार यकलख्त हवास में आए, वो टूटे थे। मूवी मेकर को इसके सपाट तासुरात से उलझन हो रही थी। वो नौफल से कह रहा था, क्या बात है हमारे यार की, ये होता है असल रोब, वरना खवातीन की बोलती कौन बंद कर सकता है? आज़र ने शरीर लहजे में कहा तो वो सब हंसने लगे। जी नहीं, पहली बार हम सबसे दूर हुई है इसलिए उदास है, वरना हमारी सबा की सिर्फ बातें नहीं बल्कि मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। जोहा ने मुस्कुराते हुए झुककर तायीद करते नजरों से सबा को देखा तो शदीद बेबसी के आसार में गिरे हुए इसने मुस्कुराने की कोशिश कर डाली, मगर इस मुस्कुराहट में बहुत फीकापन था क्योंकि इसे बनावट नहीं आती थी। वो खालिस जज्बात और एहसासात से गुंदी लड़की थी। मगर ये बात नौफल अहमद नहीं जानता था कि वो अपनी जज्बातियत और अना के आसार में कैसा गिरा हुआपन कर रहा है। रवायत के मुताबिक आज इन दोनों को मीर हाउस जाना था, जबकि नगीन और अनस यहीं ठहरने वाले थे। घर में नौफल का वैसा ही इस्तकबाल हुआ जैसा कि अकलौते और अच्छे दामाद का होता है। वो किसी को भी अजनबियत का एहसास दिलाए बगैर इनमें बहुत दोस्ताना तरीके से घुल मिल गया था, जैसे सालों से वो इन्हें जानता हो, यहाँ रहता आया हो। यू आर वेरी लकी सबा, तुम्हारा शोहर यकीनन घर वालों का पसंदीदा तरीन दामाद बन जाएगा। लाइबा ने बेलाग तबसरा किया था। सबा को इसकी बनावट और धोखाबाजी जहर लग रही थी, मगर मजबूरी थी कि अब अपने घर में होते हुए अपने ही प्यारों से वो असलियत नहीं कह सकती थी, वरना यहाँ एक तूफान उठ खड़ा होता जो ना जाने क्या क्या कुछ ले आता, बहा ले जाता। इसकी एक्टिंग से घबराकर वो उठ खड़ी हुई थी। वो थक गई थी। कपड़े चेंज कर लूं? आराम से बैठो, खबरदार जो अभी कपड़े बदले। नौफल भाई ने तुम्हें ढंग से देखा ही कहाँ होगा। आयजा ने इसे घूरा तो इसके खुश फहमी पर इसे रोने के साथ साथ हंसी भी आने लगी। इन्हें ये सब पसंद नहीं है, तुम फिक्र मत करो। वो किसी तौर पर वहां बैठकर इसका धोखाधड़ी का मुजाहरा करने को राजी ना थी। वो तीनों सबा के साथ ही उठ खड़ी हुई। अब बताओ क्या अहवाल है तुम्हारे? आयजा ने भमो को शरारत से जंबिश देते हुए पूछा और वो इस्तफामिया नजरों से इसे देखने लगी। ये लो, ये हाल है इसका। जोहा बदमजा हुई थी। अच्छा, नौफल भाई ने मुंह
खाई में क्या दिया है? लाइबा को याद आया था, वहाँ इतनी भीड़ भाड़ में याद ही नहीं रहा। सो अब फौरन पूछ लिया। सबा ने खामोशी से अपनी दाहिनी कलाई आगे कर दी। चलाई चूड़ियों के साथ बेहद खूबसूरत डिजाइन के 2 कंगन जगमगा रहे थे। ये सब? जोहा ने तहय्युर से पूछा था। ये कंगन? वो मदम आवाज में बोली। ब्यूटीफुल, चॉइस अच्छी है नौफल भाई की। लाइबा ने इसकी कलाई थामकर कंगन देखते हुए कहा था। वाकई सबा को भी इन्होंने ही पसंद किया है। सबा हंसी थी। बहुत अच्छे प्लान मेकर हैं वो। इसका दिल दुख रहा था। क्या था जो इतने खूबसूरती दिखाई देने वाले शख्स का दिल भी इतना ही खूबसूरत होता? सुनहरी रंगत रखने वाले शख्स का दिल कितना स्याह है, इससे तो सिर्फ मैं ही वाकिफ हूँ। वो इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई थी। पानी के साथ इसने बहुत से आंसू भी बहाए थे। वो खुद को बेकसी और बेबसी के अरूज पर पा रही थी। जहन कोई भी फैसला करने में नाकाम हो रहा था, मगर ये तो तय था कि वो अनस का घर किसी तौर पर बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। तो फिर मुझे इंतजार करना चाहिए इस शख्स की कड़े सबके सामने खुलने का। कोई सबूत मेरे हाथ लग जाए तो तब मैं आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने इसकी असलियत वाज़िया करती रहूंगी, और जब सबूत हाथ में होगा तो फिर कोई भी मुझे जुटला नहीं पाएगा। इसने खुद को तिफल तसलियों से बहलाते हर मुमकिन कोशिश कर डाली थी। अब जबकि जिंदगी तूफान में ले ही आई थी तो हौसले और हिम्मत से इसका मुकाबला करने की ज़रूरत थी। वो शावर लेने के बाद कपड़े तब्दील करके निकली तो कमरे में सिर्फ जोहा ही रह गई थी। सबा के पुरनीम दर्रास वो इसे खामोशी से तौलिए से रगड़कर बाल खुश्क करते देख रही थी। क्या बात है? इसकी खामोश नजरों से सबा अंदर ही अंदर जज्बस हो गई थी। जोहा ने कहा, मैं देख रही हूँ कि शादी के बाद तुम्हारे अंदर क्या तब्दीली आई है। शादी के बाद क्या इंसान के सींग निकल आते हैं? सबा ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, मगर वो इसी संजीदगी से बोली थी, मेरा तजर्बा तो नहीं मगर मुशाहदा ज़रूर है। नगीन को देखा है तुमने? किस कदर फ्रेश लग रही है। मुस्कुराहट इसके होंठों पर से जुदा नहीं हो रही, और तुम तो मूवी मेकर के कहने पर भी यूं मुस्कुरा रही थी जैसे किसी ने कनपट्टी पर पिस्तल रख दिया हो। एक तो तुम फजूल बातें बहुत करती हो। सबा ने पंखे की तेज हवा में बाल खुश्क करते हुए बात को नज़रअंदाज कर दिया था। तुम तो नौफल बाई से शादी पर रजामंद नहीं थी, तब मैंने इस बात को मजाक में उड़ा लिया था। अब मैंने देखा कि नौफल बाई खुश और मुतमिन है और तुम पहले की निस्बत डल और बुझी हुई हो। जोहा इसके सामने आ गई थी। इसकी हमदर्द गमगसार बचपन से लेकर कल तक वो अपनी हर बात इससे करने की आदी थी। इसके मशवरे पर ही सब काम करती थी, मगर अब इसे मालूम हुआ था कि कुछ बातें सिर्फ दिल के नहा खानों में छुपा कर रखने के लिए होती हैं। इनका किसी को पता ना चलना ही सबके हक में बेहतर होता है। जोहा की जज्बाती तबीयत भी मद्देनजर थी। अभी पहले तो जाकर नौफल से 2-2 हाथ करती हूँ और फिर सारे में खबर फैला देती हूँ, तो ये तुम्हारा कसूर है ना कि मेरा। सबा ने बहुत हिम्मत करते हुए उसकी आंखों में देखा था। इस लम्हे इसे नौफल पर रश्क आया था। किसी रल्ले से वो सबकी आंखों में आंखें डाले सच की एक्टिंग कर रहा था। तुम खुश हो ना सभी? जोहा का दिल जाने कैसे वहमों से भरा हुआ था। सबा को सदा की लापरवाह सी जोहा पर प्यार आ गया था। इसके लिए कितनी परेशान और संजीदा हो रही थी वो। मैं बहुत खुश हूँ जोहा, बहुत खुश, इसका हाथ थामकर कहते हुए सबा ने इससे शायद खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की थी, मगर बुरा हो इस आवाज़ का जो बुरे वक्त में भर आई थी। वो जोहा के गले लग गई थी। बस तुम सबकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। इतना प्यार पाया है इस घर से, यहाँ के मकीनों से, भूलने में टाइम तो लगेगा ना। वो जब्त करते हुए रो दी। जोहा कौन सा जज्बातियत में किसी से कम थी। वो भी जोरों शोर से इसका साथ देने लगी। दिल हल्का हो जाने के बाद वो इससे अलग हुई तो एक दूसरे को देखकर दोनों बेसाख्ता हंस दी। चलो चलकर चाय पीते हैं, जोहा ने कहा तो वो इनकार करते करते रह गई। अभी जोहा ने इसकी खामोशी को नोट किया था। इसकी उकताहट और सोगवारी घर वालों को परेशान करने का मूजब भी बन गई थी। सो वो दुपट्टा सर पर टिकाती इसके साथ टीवी लाउंज में चली गई थी, जहाँ इस वक्त चाय का दौर चल रहा था। वो आयशा और लाइबा के पास बैठी। सामने ही नौफल बैठा ताया जान से बिजनेस के अमूर से मुतालिक गुफ्तगू कर रहा था। वो इसकी तरफ देखते ही एतराज़ करती लाइबा की तरफ मुतवज्जा हो गई, जो शादी के दौरान होने वाले दिलचस्प वाक़यात में थी। ताई जान, चची जान, मरियम फूफो सभी इसके गिर्द बैठी हुई थी। नौफल वो इतना सुलझा हुआ फर्मा बरदार नेक ताया जान और चचा जान को बहुत ज़हीन लगा था, क्योंकि वो कारोबारी बारीकियों से बहुत अच्छी तरह आगाह थे, और ऊपर से इसके लबो लहजे का ट्राउ और एहतराम किसी तौर पर भी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं था। कुछ भी कहें जनाब, सौदा बहुत कमाल का हुआ है। खालू जान ने खोटे सिक्के के बदले हीरा पा लिया है। चांद ने अनस और नौफल पर कमेंट दिया तो वो सुलग कर रह गई। बड़ों के उठ जाने के बाद सिर्फ यंग जनरेशन ही वहाँ बैठी रह गई, मगर फिर भी वो कुछ बोल नहीं पाई थी। ये तो जब अनस भाई आएंगे तब मैं इनको बताऊंगी। जोहा ने धमकाया तो वो तमस्कराना अंदाज में पूछने लगा, क्या बताओगी? यानी कि इनकी गैर मौजूदगी में इनकी पार्टी अरकान ने लोटा बनकर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है, इसने इत्मीनान से कहा। चांद इसे घूर कर रह गया। ये तो बहुत ज्यादा है। अब अनस मेरा बहनोई है। नौफल मुस्कुरा रहा
था। बस जी किस्मत, अहमद ने आ भरी थी। हाँ, मुईद ने हंकारा भरा था। क्या मजाल है जो मुईद भाई एक बात भी सुन ले, अनस बारी से मुतालिक वाजदा ने बड़े अंदाज में कहा था। ये तो मोहब्बत है, नौफल ने कहा तो अम्माद ने फौरन पूछ लिया, तुम यकीन रखते हो मोहब्बत पर? ये पहली बराह रास्त गुफ्तगू थी जो इन दोनों के माबैन होने वाली थी। नौफल ने लब भींचे, फिर मुस्कुराया। मिल जाए तो बहुत अच्छी, वरना बकवास। इसकी अजीब सी उनकत पर शोर मच गया था। भाई फिल संभालना तो इस चीज़ की कोई वक़्त नहीं जिसे आप मोहब्बत कहते हैं। नौफल के इत्मीनान से कोई फ़र्क नहीं आया था। कोई और वक्त होता तो जोहा इसके यूं मोहब्बत को चीज़ कहने पर लंबी बहस का आगाज़ कर देती, मगर इसका रोम रोम नौफल की हमायत कर रहा था। आजकल इंसान के पास सिर्फ रुपया होना चाहिए। इसके लहजे की तलखी को सिर्फ मुईद महसूस कर पाया था। और मैं कहता हूँ कि इंसान के पास सिर्फ टाइम होना चाहिए। अम्मार की बात पर कह कहा पड़ा था। इसकी हर मोड़ पर मोहब्बत में मुब्तला हो जाने वाली आदत से वो सभी वाकिफ थे। इसका मतलब है कि नौफल का मोहब्बत पर यकीन नहीं है, अम्माद ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसके खफीफ से अंदाज में शाने उचकाते हुए चाय का कप लबों पर लगा ली। और आप क्या कहती हैं लेडी? आप तो नई नई इस मैदान में वारिद हुई हैं। और अब सबा की तरफ वो पलटा था। सभी इसकी तरफ मतवज्जा हो गए। लहजा भर के तौक़ुफ़ के बाद वो इत्मीनान से बोली, मेरे पास माशा अल्लाह से पहले ही से मोहब्बत का बहुत सारा स्टॉक जमा है, इसलिए नई कपाई के लिए टाइम नहीं है। नौफल के जहन की तनावें खिंच गई थी। वाह भाई, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? पुरानी मोहब्बतों को दिल के नहा खानों में रखना अच्छी बात है, मगर नई मोहब्बत का दर्द तो हमेशा वार रहना चाहिए। अम्माद ने कहा तो नौफल को लगा जैसे वो दर पर्दा सबा को समझा रहा हो, इसे दो गलेपन और धोखा दही की जिंदगी गुजारने की तरकीब दे रहा हो। वो कोई जवाब दिए बगैर मुस्कुरा कर रह गई। लो भाई, यहाँ तो सभी बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड बने बैठे हैं, मोहब्बत को फालतू और वक्त का ज़ाया समझने वाले। अम्माद को सख्त मायूसी ने घेरा था। खैर ऐसा भी नहीं है, मैंने तो मोहब्बत से बड़ी और सच्ची हकीकत और कोई नहीं पाई, चाहे अपने अकीदे से हो या किसी इंसान से। बहुत गैर मुतवक्का तौर पर मुईद ने अपनी राय दी थी और इसके लहजे में इस कदर संजीदगी थी कि सबको इसकी तरफ मतवज्जा होना पड़ा। एक दूसरे पर एतमाद और एतबार के सहारे बुरे से बुरे हालात का डटकर मुकाबला करना, एक दूसरे से जुड़े रहना मोहब्बत है, वो कह रहा था। और जोहा को यूँ महसूस हुआ जैसे वो इसको सुना रहा हो। और मुझे तो किसी ने ये भी कहा है कि ये ज़िंदगी में एक बार होती है और फिर कायमो दायम रहती है, चाहे कैसे ही मुश्किलात क्यों न दरपेश हों। और बतौर रेफरेंस ये नज़म सुनाई कि मोहब्बत करने वालों की निगाहें भी हवा में डोलती खुशबू की सूरत मंजरों में अपने होने की निशानी छोड़ती हैं। चांदनी रातों में जैसे चांद की किरणें समुंदर के बदन में नगमी आबाद करती हैं। मोहब्बत करने वालों के ताल्लुक और इनकी डोरियां सबसे अनोखी हैं। ये तो सरासर जातियात पर उतरने वाली हरकत की थी मुईद ने। इसका जी चाहा चाय से भरा कप इसके मुस्कुराते हुए चेहरे पे उल्ट दे। अब नए सिरे से मुईद की हमायत और मुखालफत में बहस शुरू हो गई। जोहा बिल्कुल खामोश बैठी अपने कप को घूरे जा रही थी। ये तो एक अटल हकीकत है नौफल, जिससे तुम कोई अहमियत देने को तैयार ही नहीं। यूँ हमारे साथ बैठकर इस कदर बेतकल्फ़ी और दोस्तानापन का मुजाहरा करना मोहब्बत ही है, मजबूरी नहीं, क्योंकि मजबूरी को निभाना लाजिम नहीं होता। अलबत्ता मोहब्बत बेख्तियार निभाई जाती है। और तुम्हारे बारे में तो मशहूर है कि मोहब्बतें इकट्ठी करना तुम्हारा जुनून है। चांद ने इसकी ज़ात को तय दर तय बेनकाब करने की हल्की सी कोशिश की थी। ऑफ कोर्स यार, मैं कब मुकरता हूँ? मेरी माँ, मेरी बहन, मुझसे वाबस्ता रिश्ते, इन सब से मुझे बहुत मोहब्बत है। सुन लो सबा, तुम्हारा नाम इसने चुनकर नहीं लिया, अहमद ने शरारत से कहा तो वो सुलग उठी। यूँ छोटी छोटी बातों में दूसरों को पुष्पा करके सबके सामने संभलने के लिए छोड़ देना इसे जहर लगता था, मगर बहुत इत्मीनान से बोली, तो इसमें ऐसा क्या खास है? मैं भी यही करती। बहुत ख़राब हालात हैं इनके, अहमद ने तासुब से कहा तो सबा को नौफल को लब भेजते देखकर बहुत सुकून मिला था। यूं है तो यूं ही सही नौफल अहमद, अगर तुम मेरे लिए बेताब नहीं तो मुझे भी तुम्हारे लिए बेकरारी दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं मोहब्बत के मामले में। चलो भाई चांद, तुम ही कोई अच्छा सा गाना सुनाओ, नुमान ने उकताकर फरमाइश की थी। और वो तो यूं भी हर वक्त अपने टैलेंट का मुजाहरा करने की कोशिश में लगा रहता था। फ़ौरन गिटार हाथों में लिए शुरू हो गया। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, मेरे आंगन की हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा, ना तो आएगी ना ही चैन आएगा। इसने बहुत खूबसूरत अंदाज में गाना सुनाया तो सबने दिल खोलकर दाद दी। इतनी नाउमीदी ठीक नहीं होती, वह ज़रूर आएगी और तुम्हारे आंगन की सूखती बेलों के पत्ते फिर से हरे भरे हो जाएंगे। अहमद की तमाम तर हमदर्दियाँ इसके नाम थी। दिल में किसी की राह तके जा रहा हूँ मैं, कितना हंसी गुनाह किए जा रहा हूँ मैं, मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, ये जुर्म गाह गाह किए जा रहा हूँ मैं। अम्माद के
انداز میں شرارت تھی۔ اس کے گاہ گاہ سے سبھی محفوظ ہوئے تھے۔ چلو بھئی صبا، اب تمہاری باری ہے، اپنی بیاس کھولو۔ عائزہ کو شرارت سوجی۔ میں؟ وہ سٹپٹائی تھی۔ ہاں تم سناؤ گی، بھلا کس کے لیے؟ عماد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو کتی بھر کے توقف کے بعد وہ پرسکون انداز میں بولی، آپ کے لیے۔ بڑی محفل میں اتنی بڑی جرأت؟ نوفل کو جھٹکا سا لگا۔ باقی سب بھی متجسس تھے، مگر جب اس نے نظم سنانا شروع کی تو سب کو اس کا پس منظر جان کر ہنسی آنے لگی۔ کسی لڑکی سے مت کہنا کہ اس سے پیار کرتے ہو، اگر بے دہانی میں بھی یہ اقرار کر بیٹھے، کسی سے پیار کر بیٹھے تو پھر وعدوں کی دوڑوں میں الجھ جاؤ گے۔ تمہارے پیار کا اس کو اگر احساس ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کا رنگ و روپ بن جاؤ۔ محبت کے سفر میں شاید ایسا موڑ آ جائے کہ تم ناراضگی کا برملا اظہار کر بیٹھے، کوئی انکار کر بیٹھے تو یہ سمجھ لو کوئی شیشہ، کوئی دل ٹوٹ جائے گا کہ ان کے دل بہت نازک، بہت کمزور ہوتے ہیں۔ کسی کے دل کا ٹوٹنا بھی موت ہوتی ہے۔ کسی دل سے مت کہنا۔ وہ بہت سنجیدہ سے اسے مشورہ دے رہی تھی۔ عماد خجل سا سر کھجانے لگا، اپنی عادت سے واقف جو تھا۔ یعنی جو جرم تم گاہ گاہ کیے جا رہے ہو اسے ایک ہی گاہ پر محدود کر دو۔ احمد نے لقمہ دیا تھا اور پھر وہ سب عماد کی کھچائی میں مصروف ہو گئے۔ صبا کو بہانے سے اٹھ کر تائی جان کے کمرے میں جاتے دیکھ کر نوفل سلگ کر رہ گیا۔ خود زوہا ابھی تک انہی لفظوں کے گہراؤ میں تھی۔ آج کتنے ہی دنوں بعد پھر سے ہلکے ہلکے درد نے دل کو جھڑکنا شروع کیا تھا۔ بھلا مجھ سے بڑھ کر کون جا سکتا ہے کہ اس موت سے گزرنا کیسا ہے جسے لوگ بڑے آرام سے دل کا ٹوٹنا کہہ دیتے ہیں۔ وہ بھی تھکن کا بہانہ کر کے اٹھ گئی تو پھر محفل برخاست ہونے لگی۔ وہ کمرے میں آئی تو نوفل بستر پر نیم دراز کوئی کتاب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں اپنے بستر پر پا کر صبا کو عجیب سے احساس نے گھیرا تھا، جیسے کوئی فسانہ یا کوئی خواب۔ واقعی ایک خواب ہی تو تھا، ورنہ اس کے اپنا ہونے کا کوئی احساس، کوئی سرگوشی تو اپنے حصار میں نہیں لیتی تھی۔ مگر خود کو سنبھالنے کے لیے تو وقت چاہیے تھا نا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی بہت احتیاط کے ساتھ بال سمیٹ کر چٹیاں بنانے لگی۔ نوفل کی نگاہ بے اختیار اس کے سراپا پہ اٹکی تھی۔ کومل و نازک سا سراپا، گھٹنوں کو چھوتے سیاہ بال، چہرے پہ چھائی ملاحت اور معصومیت۔ کوئی بھی تو کمی نہیں، مگر پھر بھی کتنی بڑی کمی ہے تم میں صبا میر۔ وہ تلخی سے سوچتا پھر بھی کتاب اٹھا کر ورق گردانی کرنے لگا تھا۔ صبا کو اس کے جاگتے ہوئے بستر پر لیٹنا عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ اس کا گریز بانپ گیا تھا۔ یوں ہی کتاب کے صفحات الٹا بہت پرسکون مگر جتانے والے انداز میں بولا، فاصلے تب تک نہیں سمٹتے جب تک کہ انہیں مٹانے کا ارادہ نہ ہو۔ آپ آرام سے سو سکتی ہیں کیونکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ وہ وقت سے اڑ گئی۔ اتنا کھلی تذلیل، اس قدر گھٹیا گفتگو؟ ایسا کر کے تو آپ مجھ پر احسان ہی کریں گے، کیونکہ آپ کو اگر کوئی ایسی چاہت نہیں تو مجھے بھی آپ کی نام نہاد توجہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چٹک کر رہ گئی تھی اور اس فوری غصے کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ اس کے مطالعے کی پرواہ کیے بغیر لائٹ آف کر کے بلب آن کرتی بستر پر آ کر کروٹ بدلتی لیٹ گئی تھی۔ ساری جھجک غصے کی تہوں میں ڈب کر رہ گئی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ غم کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، نیند سے پہلے تک ہے۔ وہ جتنی دیر جاگتی رہی، کڑتی سلگتی رہی، آنسوؤں کے لاوے کو اندر دھکیلتی، خود کو کمزور نہ پڑنے کا درس دیتی رہی تھی، اور پھر جانے کب نیند کے دبوچے میں ہر غم، ہر احساس سے عاری ہوتی چلی گئی، یہ جانے بغیر کہ اسی بستر پر نیم دراز دوسرا وجود کس قدر مضطرب اور اپنے آپ میں سلگ رہا ہے۔ خوشیوں بھرے دن گزرتے تو ایک پل لگتا ہے، یہ تو غموں کے دن ہیں جو پوری عمر پر محیط لگتے ہیں۔ زیست وقت کے شانوں پر جب بوجھ ہونے لگے تو جیون کی کٹھنائیوں میں الجھ کر یہ دل سارے ضبط، سارے حوصلے کھونے لگے تو پھر صبح بہارا بھی خزاں کی شام لگتی ہے۔ صبا کو ایک صالح بیگم کا مشفق وجود غنیمت لگتا تھا، ورنہ نوفل کی اول روز سے بے اعتنائی اور بے پرواہی تو شاید اس کی جان لے چکی ہوتی، اتنے بڑے گھر کی تنہائی پاگل کر چکی ہوتی۔ شادی کو ابھی بمشکل 2 ہفتے گزرے تھے اور اس نے آفس جانا شروع کر دیا تھا، اور توجہ بھی بہت معقول تھی۔ سارا بزنس میرے سر پر ہے۔ اٹلی کے ڈیلی کچن کی میٹنگ کب سے روک رکھی ہے، بہت بڑا لاس ہو جائے گا تو ہو جائے نقصان، مگر اتنے خوبصورت دنوں کو 2 اور 2 4 میں مت گنواؤ۔ صالحہ بیگم نے صبا کو بہت مان دینا چاہا تھا، وہ دل میں اس ستم ظریفی پر ہنس کر رہ گئی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ان کا بیٹا یہ سب اپنی مرضی سے کر رہا تھا، اس سے بھاگتا پھر رہا تھا، مجبوری کا سودا نبھانے کا یارہ جو نہ تھا۔ امی آپ بھی نا، بس بات فقط روپے پیسے کی نہیں، زبان کی ہے۔ بزنس میں کانٹریکٹ سائن کرنا پڑتا ہے،
हर काम वक्त पर होना चाहिए, वो इन्हें बहला रहा था। सबा खाने की टेबल पर बैठी खामोशी से इन दोनों की गुफ्तगू सुन रही थी। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि हर काम वक्त पर होना चाहिए। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं कि तुम बिजनेस में सर खपाने लग गए हो। इतना नहीं हुआ कि सबा को कहीं घुमाने ही ले जाओ। इन्हें वाकई नौफल की रूटीन पसंद नहीं आई थी। कल भी तो यही करना था ना, इसीलिए अभी से रूटीन सेट कर ली है। घूमने फिरने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, वो लापरवाही से कह रहा था। जितना साला बेगम इस पर जोर दे रही थी, इतनी ही सबा को शर्मिंदगी हो रही थी। अब इन्हें क्या मालूम था कि यहाँ मान रखने वाले जज्बात ही नापैद थे। बहरहाल अब मैंने कह दिया तो समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब ये सोचना तुम्हारा काम है कि तुम लोग सैर तफरीह के लिए कहाँ जाना पसंद करोगे। क्यों सबा? इन्होंने अटल अंदाज में कहते हुए अचानक इस सबा की भी राय तलब की तो वो गड़बड़ा गई। जी मैं क्या कह सकती हूँ अम्मी, समझा करें ना, अभी तो इतनी सारी दावतों के इन्विटेशन आए हुए हैं, यूँ सब कुछ छोड़ छाड़ कर तो नहीं निकल सकता ना, और फिर आपको भी तो यूँ तनहा नहीं छोड़ सकता। वो यकीनन बहाने गढ़ रहा था। ये तो लापरवाह है सबा, अब तुम्हें ही सब कुछ देखना है, जो दिल चाहे मनवाया करो। वो अब सबा को समझा रही थी। कमाल है अम्मी जान, वो खाना छोड़कर हंस दिया था। आप दुनिया की वाहिद सास हैं जो अपनी बहू को ये अथॉरिटी दे रही है। मेरी बहू भी तो बहुत प्यारी है। वो इन चंद दिनों में वाकई सबा की संजीदगी मगर मोहब्बत करने वाली तबीयत की गर्दिता हो गई थी। चेहरों पे मत जाएं, इनसे बड़ा धोखेबाज और कोई नहीं होता, वो बज़ाहिर मुस्कुराते हुए कह रहा था, मगर इसके लहजे में छुपे नुकीले बाले सबा को अपने दिल में खूबे महसूस हो रहे थे। खुद वो भी तो तय तरता कई नकाब में ओढ़े हुए था। कोई नहीं, तबीयत की भी बहुत प्यारी है, साला बेगम ने इसे फहमाइशी नजरों से कहा था। वो इनकी बात पर सर हिलाकर दोबारा खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। सबा दिल मसवस करके रह गई। चलो अब बहन के मुस्तकबिल की खातिर ये कदम उठा ही लिया जाए। तो क्या वो इस लायक भी नहीं कि इसकी बेख्तियाराना निगाह की हकदार हो जाती? हजारों लोग बहुत से मफादात की खातिर शादी करते हैं, मगर मफादात अपनी जगह और बीवी से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन यहाँ तो मामला ही और था। सबा से सिर्फ इसका मफाद वाबस्ता था, दिल नहीं। बहरहाल तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास तुम्हारी पोपो है, अदीना है, तुम लोग इत्मीनान से अपना प्रोग्राम बनाओ। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि सिंगापुर चले जाओ, तुम्हें तो यूँ भी जाना ही था, सबा को भी साथ ले जाओ। वो बड़े आराम से सारा मसला हल कर गई थी। खुदा को माने अम्मी, ये खालिस्तान बिजनेस ट्रिप है और अभी तो इसमें काफ़ी टाइम है। यहाँ इतने अच्छे बखेड़े हैं कि सिंगापुर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसने इस बार संजीदगी से कहा और गिलास लबों पर लगाकर पानी पीने लगा। इसके इस कदर कृति अंदाज पर साला बेगम ने बहुत हैरान होकर इसे देखा। इन्होंने अनस की और नगीन के लिए बेताबी देखी थी और अनस ही पे क्या मौक़िफ़। इन नए दिनों में तो हर दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए दीवानगी दिखाता है, मगर नौफल इन्हें पहले से ज्यादा संजीदा लगा था। इन्होंने सबा की तरफ देखा, वो अपनी प्लेट पर यूं झुकी हुई थी जैसे इसे जरूरी और कोई काम ही ना हो। इन्हें नगीन की शोखियां और शगुफ्तगी याद आने लगी। शादी तो ऐसा बंधन है जो बेपनाह संजीदा बंदे को भी बदल देता है, आंखों में चमक भरकर का चेहरे पे गुलाब खिला देता है। फिर यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? सबा की खामोशी नज़रअंदाज किए जाने के काबिल तो ना थी। वो अंदेशों में गिरने लगी। खाना बहुत खामोशी से ख़त्म किया गया था। सबा ने साला बेगम के मना करने के बावजूद नूरी के साथ मिलकर बर्तन समेटे और फिर चाय बनाने खड़ी हो गई। नूरी तेज़ी से बर्तन धोते हुए इतनी ही तेज़ी से ज़बान भी चलाती जा रही थी। इसकी सादा और कुछ कुछ बेवकूफ़ाना सी तबीयत सबा को बहुत पसंद थी, सो वो अब भी दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रही थी। अम्मी आप गलत समझ रही हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। इसके कदम थटके थे, नौफल कह रहा था। और फिर इस घर में इतनी खामोशी क्यों है? अब मुझे एहसास हो रहा है कि इतने दिन हो गए हैं मैंने सबा को कभी ढंग से सजते संवरते नहीं देखा, कभी ऊंची आवाज़ में हंसते नहीं सुना, साला बेगम सख्ती से कह रही थी। अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? सबा की नेचर ही ऐसी है, वो यकीनन इस तफ्तीशी मरहले के लिए तैयार नहीं था, गड़बड़ा गया। मगर साला बेगम यकीनन इसकी तरफ से खटक गई थी। इसकी नेचर तो चलो ऐसी ही होगी। अपने बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? यूँ लगता है जैसे तुम्हारी शादी को 2 हफ्ते नहीं 2 साल हो गए हैं, इन्होंने बेलचक अंदाज में कहा था। नौफल की आवाज़ कदरे तौक़ुफ़ के बाद उभरी। अम्मी जिम्मेदारी का एहसास इंसान में बहुत तब्दीली ले आता है। ऐसी कौन सी जिम्मेदारी आन पड़ी है तुम पर? और फिर इस बात का शादी से क्या ताल्लुक? यही दिन तो होते हैं घूमने फिरने और खुशियां एंजॉय करने के। आखिर बात क्या है नौफल? मैंने तुम्हें याले के साथ बेहद खुश देखा था तो खुदा का शुक्र अदा किया था कि तुम अपने पुराने रूप में लौट आए हो, मगर अब तो तुम पहले से ज्यादा संजीदा हो गए हो। सबा से शादी का फैसला तुमने 100% अपनी मर्जी से किया था, फिर तुम दोनों में वो बात क्यों दिखाई नहीं देती मुझे जो अनस और नगीन में है? वो बख्शने के मूड में नहीं थी,
थी। इन्हें गुस्से में देखकर वो धीमा पड़ा था। सॉरी अम्मी, शायद मैं ही गलत हूँ। आई एम वेरी सॉरी। आई प्रॉमिस यू अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने इसलिए संजीदा बनने की एक्टिंग कर रहा था कि शादी के बाद आदमी को जरा सोबर दिखाई देना चाहिए। मुझे क्या खबर थी कि आप इतनी सी बात को दिल पे ले लेंगी। ये इतनी सी बात नहीं है नौफल। पराई बच्ची को घर में लाकर ना कदरी करना कहाँ का इंसाफ है। सबा ने आपसे शिकायत की है? वो पूछ रहा था। वो बेचारी क्या कहेगी, मेरी भी आंखें हैं, मैं भी तुम्हारे एतवार देख रही हूँ। इन्होंने सबा को बरी किया था क्योंकि इसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है। आप तो यूं ही परेशान हो रही हैं, वो अब सुकून से कह रहा था और दरवाजे से बाहर खड़ी सबा का जी चाहा कि वो अंदर जाकर तमाम हकीकत साला बेगम को बता दे, नौफल की पोल खोल दे जो इतना फर्माबरदार और नेक बना बैठा था, और मैं इसके मुंह से कोई शिकायत सुनना भी नहीं चाहती। इन्होंने तंबी अंदाज में कहा। अभी शायद इनकी गुफ्तगू जारी रहती मगर बुरा हो जो नूरी का जो किचन ही से आवाज़ बुलंद बोलती चली आ रही थी। सबा जल्दी से चाय की ट्राली लिए अंदर चली आई। बकिया नावल सुनने के लिए देखते रहिए इन्फो विद अनम। मोहब्बत दिल पे दस्तक, किस्त नंबर 6, हिस्सा नंबर 3।